all of you preparing for CLAT 2026 in the last 2-3 months don't understand as to what should be my checklist. Basically, what do I do every single day? What is totality में मेरे को क्या करना है? I don't get that understanding and I keep doing certain things that sometimes do not make any difference in my preparation, right? Mock score कम का कम ही रह गया है, कभी और भी कम हो रहा है. So in this session, I'm going to give you a very simple technique on how to create a checklist which is actually for your need because हर student की अलग-अलग requirement होती है. I will also give you a general checklist जो आपको इन अगले 2 से 3 महीने में follow करनी है, right? Let's first start with a daily checklist, right? In the last 2-3 months, you need to cover 2 subjects every day and current affairs का backlog या नए topics हर रोज चलेंगे, ठीक है? अब वो 2 subject कौन से होंगे? It gets very difficult for us to understand. तो जब मैं 6 महीने या 7 महीने पहले ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था तो यूज्ड टू से कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो कि लेट्स से इंग्लिश भी हफ्ते में 3-4 बार आ रहा है, सेम फॉर लॉजिक, सेम फॉर लीगल, सेम फॉर मैथ्स एंड सो ऑन. बट अभी मैं ये बोलूंगा कि द सब्जेक्ट्स दैट यू फील आर योर वीकेस्ट जोन्स इन विच यू आर स्कोरिंग लोएस्ट इन योर मॉक्स या फिर जनरली आपको लगता है कि वो आपके वीक है, उनको ज्यादा फोकस करो. So those subjects should come every alternate day in those 2 subjects that we are talking about, right? Let's say my maths is weak. So day 1 पे I will do legal plus maths plus current affairs जो रोज करना है मेरे को. Day 2 पे I will do logic plus English plus let's say current affairs. Third day पे I will again do English plus maths because मेरे को हर दूसरे दिन maths करना है. That is very important. अगर आपका बहुत ही weak है तो आप हर रोज भी कर सकते हो. You can do it 5 days a week also. ठीक है? क्योंकि this is the time when you actually pick up those things that were outside your comfort zone and you stop doing that. Very important. Other than that, take all the classes that you are a part of. Concept clarity is also a very important aspect. Practice genuinely important है CLAT के लिए, but अगर आपके concepts weak है ना, practice आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो, right? If you are still not sure as to how to go about your practice, you can join our crash courses which is Varchasva और Varchasva Plus. दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है. You can check the offerings, you can check what are the features of both these batches. Very affordable. इसके ऊपर you can use my code Malpani and get more discounts on this. इन numbers पर contact करो. Visit 12minutestoclat.com. Download our app from Google Play Store and App Store. Start working with us right away. ठीक है? अब यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात और एक क्लियर क्लैरिटी हो गई कि मेरे को 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना है. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स इन करंट अफेयर्स, लॉट ऑफ एज इन लाइक पिछले 6 महीने का ही नहीं किया हुआ है या पिछले 7 महीने का नहीं किया हुआ है, गिव इट 2 hours एवरी डे. वेरी इंपॉर्टेंट. हर दिन अगर आप 2 घंटे दोगे दैट विल स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन ओवरऑल एंड यू विल बी एबल टू ओवरऑल कह सकते हो कि एक अच्छा काम आप कर पाओगे, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 2-3 महीने का बैकलॉग है तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दोगे करंट अफेयर्स को हर रोज 2 घंटे की बजाय, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग. स्लोली होगा बट आराम से हो जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफी ज्यादा बड़ी टेंशन है कि सर बैकलॉग तो इतना सारा है, कैसे कवर होगा? वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा. तो अगर आप रोज के 2 hours दे पा रहे हो बैकलॉग्स को, यू शुड बी एबल टू कवर इट विद इन 2 months. नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. अगर उसको और डिले करते रहोगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है? अगर मैं आवर्स की बात करूं एज टू हाउ मेनी आवर्स शुड आई गिव एवरी सिंगल डे, 6 to 7 hours something I can give. If you are too new to CLAT, you're starting, you need to understand some certain important things as well. You can give 7 to 8 hours also every day. Create a written schedule. Written schedule का मतलब है सुबह लिखेंगे कि दिन में क्या क्या करना है. Not like कि 12 से 1 I will do this, 1:30 to 2:30 I will do this, 2:30 I will take 1 hour sleep break or lunch break, then I'll do this. Not that. Just the task list. I have to read my newspaper, I have to watch 2 classes, I have to, you could say, do a bit of backlogs, I have to, let's say, solve a mock, something like that, okay? तो ये आपका एक डेली चेकलिस्ट हो गया जो आप हर रोज करते रहोगे. जिस दिन क्लासेस कम है उस दिन मॉक ज्यादा होंगे. जिस दिन लेट्स से आप करंट अफेयर्स के कंपेंडियम को थोड़ा कम पढ़ रहे हो उस दिन आप मॉक ज्यादा कर लो, टॉपिक ज्यादा कर लो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द डेज वेयर यू आर नॉट डूइंग अ फुल मॉक टेस्ट, प्लीज सॉल्व समथिंग ऑन दैट डे. इट कैन बी अ सेक्शनल टेस्ट, इट कैन बी समथिंग लाइक अ डेली प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी है ना, कुछ उठा के डेफिनेटली रोज सॉल्व करो. दैट कीप्स यू इन दैट प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग और आपका दिमाग एकदम रुकता नहीं है ना, क्योंकि आप रोज ही प्रैक्टिस में, रोज यू आर सॉल्विंग समथिंग और द अदर. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय जनरल चेकलिस्ट. जनरल चेकलिस्ट क्या होती है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मेरा क्या टारगेट होना चाहिए ओवरऑल. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज अ जनरल टारगेट एज वेल एज अ डेली टारगेट, लेकिन डेली तो आप सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर नहीं पाओगे. तो आपको इंश्योर करना है that by 15th of November, other than current affairs, you are through with everything.
अब आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं करनी पड़ रही है, तो वो आपका एक टारगेट होना चाहिए और इस हिसाब से यू विल बी एबल टू क्रिएट योर डेली टारगेट्स, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल 4 सब्जेक्ट्स अदर देन करंट अफेयर्स इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी टारगेट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज number of mock tests to be done. Okay, you can start with 2 mock tests a week. अगर आप ALET भी दे रहे हो तो you can do 2 mock tests in 1 week, 2 CLAT mock test. अगले वीक में आप 2 CLAT mock test और 1 ALET mock test कर सकते हो, राइट? तो एक वीक में 2, एक वीक में 3. When you move into the last 1.5 month, हर वीक में 3 मॉक टेस्ट करना, एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट आ जाएगा, सो दैट विल गिव यू गुड प्रैक्टिस, क्या गलतियां हैं उसको अच्छे से एनालाइज करके विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन रिजॉल्व दो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, एप्लीकेशन इंप्रूव हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सी ऑल 120 क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू अटेंड मोर देन 100 क्वेश्चंस. दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट सिंपलर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जाम अगर आप चेकलिस्ट फॉलो कर लो तो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ ए डेली चेकलिस्ट, लेकिन उसको आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा टू एबल टू get it into your system, is whenever you sit to do anything in the preparation, let's say you're reading a compendium, you are solving something, you कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ concept पढ़ रहे हो, आप book पढ़ रहे हो, कुछ भी है ना, do it for 2 hours at a stretch. A lot of students have this problem that while they do mock tests, they are not able to cover it for 2 hours. 1 घंटा 1.5 घंटे बाद उनको बहुत tiring लगता है. That's because we don't have the habit of sitting for good 2 hours, right? So let's start doing that in every activity that we do, so that it becomes something very common, very natural, very casual for us, right? That is very important. तो मॉक टेस्ट मैंने आपको डेली के तो बता दिए, बट यू नीड अ कंप्लीट चेकलिस्ट फॉर द एंटायर सेशन, जो भी हमारे पास 2-2.5-3 महीने हैं आपके पास, तो उसमें डू 30 क्लैट मॉक टेस्ट. ठीक है, अगर आप एलेट दे रहे हो तो साथ साथ आप 10 एलेट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन 30 क्लैट मॉक टेस्ट आपको मिनिमम देना है बिफोर योर एग्जाम. अब वो आप कैसे दोगे, किस तरह से प्लान करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा मत करना कि 30 में से 15 तो लास्ट महीने में जा रहे हैं, एकदम नो. ठीक है, उसको अच्छे से डिवाइड करो. यू कैन क्रिएट अ शेड्यूल, यू कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ कैलेंडर, दैट वुड हेल्प यू. वर्चस्व और वर्चस्व प्लस दोनों बैचेस में आपको 30 फ्लैट मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 एलेट मॉक टेस्ट मिलेंगे. 4500 से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स के अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे. उसके अलावा लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन, कॉन्सेप्ट सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस, राइट, डाउट टैब, एवरीथिंग. तो मतलब आपकी जो प्रिपरेशन के लिए 1-2 पेन पॉइंट्स है ना हमारे कि हमसे नहीं हो पा रहा है, उन पेन पॉइंट को हम पिन पॉइंट करके एकदम उनको सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट यू आर एबल टू डू वेल इन दिस एग्जाम. ऑल वी नीड फ्रॉम योर एंड इज कि जो चेकलिस्ट है ना, इसको बस फॉलो कर पाओ आप. देखो, ऐसा होगा कि हफ्ते में कभी एक दिन आएगा वेर यू डोंट फील अप टू इट, एक दिन आएगा वेर यू आर स्टक इन सम इमरजेंसी, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, घर वाले कहीं ले गए, कुछ भी, दैट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक है, बट अगर आप इसको हफ्ते में 6 दिन भी फॉलो कर पा रहे हो ना, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स वेरी गुड इन फैक्ट, राइट? लास्ट महीने में थोड़ी सीरियसनेस ज्यादा लाते हैं, जहां पर हमको 7 डेज अ वीक बोल देते हैं, लेकिन अगर 6 डेज अ वीक भी कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि आप 6 to 7 आवर्स हर रोज दे रहे हो 6 डेज अ वीक, आप 7th डे पे यू कैन मेक इट 2 आवर्स. ज्यादा मत करो, है ना, 2 घंटे करो, कंप्लीटली फाइन. जो भी आपको 2 घंटे में आपको लगता है कि इनको आज लेट्स से करंट अफेयर का सिर्फ बैकलॉग ही करना है ना, आई वांट टू रीड माय न्यूज़पेपर एंड डू अ बिट ऑफ बैकलॉग, दैट्स इट. मत करो कुछ और, इट्स फाइन. यू कैन टेक योर डे ऑफ, यू कैन डू समथिंग, यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, यू कैन स्क्रॉल रील्स, यू कैन गो मीट योर फ्रेंड्स. मैं सजेस्ट कम करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन ऑलरेडी इतना ज्यादा हमारा आजकल एक्सपोजर है ना, इट्स बेटर टू नॉट यूज एनी अदर यू कुड से ऑनलाइन मीडिया लाइक एनी सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स. बेटर टू गो आउट विद फ्रेंड्स और यू कुड से जनरली खेल लिए कुछ, जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, डू दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट? कीप इट सिंपल. प्रिपरेशन को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन बिकॉज दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स. वी स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद आवर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस. मेरे को लगता है कि भाई मेरे 1 महीने पहले 60 मार्क्स आ रहे थे, लेट्स से आई हैव बिकम अ गुड स्टूडेंट नाउ, आई एम गॉट इनटू 70s, बट माय प्रॉब्लम इज दैट समबडी एल्स इज गेटिंग 80, 90 और इवन 100. तो मैं उनसे तो खराब हूं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट द एग्जाम एज वेल. मेरे को लगता है मेरा नहीं हो पाएगा. आई गो इनटू दैट ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट मोड. प्लीज डोंट डू दैट. यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट. आई एम प्रीटी श्योर कि आप कर लोगे अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करो, सिंसियरली फॉलो करो. आपको पता है आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नोबडी कैन जज इट, है ना. मैं यहाँ बैठ के नहीं देख सकता कि आप रोज कर रहे हो. आपके पेरेंट्स को भी जेन्युइनली सेम घर में रहते हुए पता नहीं चल सकता कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. इट इज ऑन यू. इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू विल क्लियर दिस एग्जाम, यू विल मेक अ करियर फॉर योरसेल्फ. इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, then your career is in your hands, right? All the best, guys. I'll see you in my classes. Keep preparing, keep working hard, and keep watching the video.